So what I am telling you, those who gave group 1, whatever has been your performance, it might be that a few papers were very good and maybe a few were like average, or maybe you are little doubtful even about it. Yeah, I don't know how much I'm going to score. So please put that thought process just aside. Group 2 you should consider as if you are once again beginning the examination. So it should be with new level of energy and enthusiasm. And why I'm emphasizing so much, because जब से नया syllabus आया है ग्रुप 2 का, कहीं ना कहीं इफ यू अंडरस्टैंड, आपके बेहतर स्कोर करने के चांसेस ग्रुप 2 में हैं. What's the reason? The reason is दो practical subjects होना. You have cost and you have FMSM में at least FM. दो practical होने की वजह से आपके यहाँ पे स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं if you have prepared well. So that is what you need to understand कि यार अभी वो टाइम नहीं है जहाँ हम ये सोचें that I'm all drained and now पेपर तो पहले ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं, अब क्या पता आगे क्या होगा. नो नो नो, it is a point to revamp yourself. It's a point to re-energize and understand that strategically now you are entering that particular exam ka mode wherein you are going to get more opportunity, and this is going to help you make the aggregate and even help you get a better score than aggregate. So that's the point, and that's something that I want to get in your brains. So is that all fine? Are you all clear with it? And those who are just writing second group, so welcome to the exam journey. This is all I can say. You must have begun your studies कुछ दिन पहले से, 2-3 दिन पहले से, but okay. Okay. So are you all okay? Done? Set? Shall we begin our discussion? Everybody? All right. So now when you have your cost ka paper, I'm going to tell you the full strategy of this 1.5 day that you have in your hand, that how you have to revise the entire and what you have to revise and that in that time. And also I'm going to share with you like how you have to attempt your paper. So everything, just what's needed is that you are very, very careful. All right. One more thing I want to tell you, and that's something very special that I have done. Yesterday I had put a story on my Instagram asking that whether do you want a cheat code for cost. So why I was asking is just to understand and have an idea, and like a lot of children responded that yes, they need it. So I am giving you a full-fledged strategy right now. Of course this needs to be understood. Then all those who are struggling or those who feel like yaar, making even 50 is a task for me in cost, if you are a person of that category, then the cheat code that you're going to get very soon, maybe आधा या एक घंटे में max to max, उसके अंदर you will have those topics if you do them properly well. So at least 50 तो you can make, at least 50. तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ it is for 90 and 95 plus that do it all properly. But जिनको लगे यार कम से कम मेरे 50 नंबर तो आ जाएं, वो लोग उन पर्टिकुलर जो मैंने टिप्स बताए हैं उसके अंदर उतना कर लिया तो 50 के आसपास तो तुम्हारा स्कोर आ ही जाएगा. तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्लियर, एंड लेट्स डायरेक्टली बिगिन आवर डिस्कशन एवरीवन. So I think everybody is excited. You need not sit and write it all. You just keep hearing what I am telling you. When you begin, you will be beginning, और मैं जो बोलूँ जहाँ से करने को वो वहीं से करना है. तो प्लीज़ ट्राई कि आप उसके अलावा दूसरा ना ऑप्शन ऑप्ट करें. सबसे पहले आप टॉपिक मटेरियल टेकअप करेंगे और इसके लिए मैंने 1.5 आवर अलॉट किया है. तो अभी 8:30 बजे से आप बैठेंगे और 10 बजे तक आपको इसको कंप्लीट करना है. और इसके लिए आई वुड से द बेस्ट सोर्स इज़ मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है. उस वीडियो को या तो ऐप में भी डला है वही वाला वीडियो, या यूट्यूब से जाके शांति से बैठ के अच्छे से उसको आपको सुन लेना है. आपने अगर पहले देखा हुआ है तो आप उसको 1.25 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे लगाओ, एकदम फोकस के साथ सुन लो. उसमें मैंने सारी बारीक वैरायटी के क्वेश्चन भी कवर करे हुए हैं और उसके अंदर मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी कवर किया है और थ्योरी भी. तो आप उसको अच्छे से कर लो, डू इट वेल. और मैंने तुम्हें जो LDR क्वेश्चंस की लिस्ट दी है मटेरियल की, उसमें से मेजॉरिटी उस पर्टिकुलर वीडियो में ऑलरेडी कवर हो जाएंगे. उसके अलावा कुछ अगर रह जाता है तो जस्ट गो थ्रू दैट. ओके. सेकेंड यूनिट एंड बैच वो उसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाता है एंड में, सेम वीडियो में यूट्यूब पे. आपको इसके जो क्वेश्चंस LDR के मैंने दिए हैं वो 45 मिनट्स का टाइम देना है. तो 10 से 10:45 अभी रात में इसको क्लोज करना है.
नेक्स्ट तुम उठाओगे 11 बजे, सो यू हैव अ 15 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। 11 से लेके 12:45 तक यू विल बी कंप्लीटिंग योर कॉस्ट शीट टॉपिक। Cost sheet is a very important topic. Please understand from exam point of view. It's a very important topic. पेपर वाली चीज़ मैं लास्ट में एक बार को बताऊंगी, बट कॉस्ट शीट को मैं फिर से एम्फोसाइज करके बोल रही हूँ। हर बच्चे को कॉस्ट शीट कोशिश करना चाहिए जितने अच्छे से कर सके और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करके जा सके, बिकॉज ये टॉपिक एग्जाम में आने के कम से कम 90 to 95% चांसेस होते हैं, एंड दैट टू फॉर अ हायर स्कोर लाइक 8, 10, 14 एनीथिंग। तो इसीलिए इसको कर लेना ही बेटर है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर उठा के किस चीज़ का हेड क्या है, सब हेड क्या है, 30 मिनट में प्लेसमेंट क्या है, वो 30 मिनट में आप उसको करेंगे। उसके अलावा मॉड्यूल के ये मैंने लिखे हुए हैं इलस्ट्रेशन 3, प्रैक्टिकल 3, ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली कर लो। और जितनी पॉसिबल आरटीपीज और पीवाईक्यूज हैं जो मैंने स्पेशली एलडीआर में तुम्हें मेंशन करे हुए हैं, इनको आप पॉसिबली जितने हो सके कर लो। क्लास में हम सारे कर चुके, यू नो दैट। फिर हमने प्रैक्टिस सीरीज में भी काफ़ी सारे कर लिए, बस इनको उठा के यू हैव टू डू। तो 1, 2, 3 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब आप आई डोंट नो व्हाट्स योर एनर्जी लेवल। आपको लगे कि इसके बाद पढ़ते बन रहा है तो आप फ्लो में 4th टॉपिक उठा लीजिएगा। आपको लगे यू आर फीलिंग दैट यू आर टायर्ड, तो देन यू कैन स्लीप एट दिस टाइम। देन गोइंग अहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स यू आर गोइंग टू टेक अप। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 8 से लेके 10 तक 2 घंटे का टाइम देना है। अभी रात में कंटिन्यू करना है, गो विथ इट। सुबह करना है, योर चॉइस। इसमें आप कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स में करेंगे। अब इसमें आपकी जो मेन बात है वो ये है, आप एक भी फॉर्मूला कैजुअली नहीं करेंगे। आपको सारे फॉर्मूले रटे होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नेवर यूज दिस वर्ड, बट येस इट्स द नीड ऑफ द आवर। आपको हर एक फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ताकि आप पेपर के अंदर एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख के आए, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। डेरिवेशन हमने क्लास में डिस्कस किया है, एग्जाम वाइज इतना रिलेवेंट होता नहीं है। आपको बस इतना कर लेना है 30 मिनट्स में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको 1 घंटे का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम देना है, एंड यू हैव टू डू दिस। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम यू हैव टू गिव, और तुमको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना है जो मैंने एलडीआर बताया। आपको करना इतना चाहिए कम से कम कि हर कैटेगरी से एक एक तो कर ही लो, हर कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन एलडीआर वाली लिस्ट को निपटा लो। तो यू आर गिवन मार्क्स फॉर राइट फॉर्मूला, दैट्स इंपॉर्टेंट। डू 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। लेबर का जो है उसको लेके थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स कई बार गलत निकाल देता है बच्चा। एक्चुअल आवर्स, अभी भी 2 दिन पहले तक भी डाउट आ रहा था जिसमें बच्चा गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि मैम ये तो शायद इन लोगों ने गलत सॉल्व कर दिया। तो इसको लेके थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। बाकी मेरा यूट्यूब पे वीडियो इसका भी डाला हुआ है जिसमें मैंने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। कमिंग टू नंबर 5, दैट्स योर ओवरहेड्स। नाउ पे अटेंशन। ओवरहेड्स इज अ बिग टॉपिक। कई बच्चों के लिए इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ कंफर्ट, इट डज गिव डिसकंफर्ट टू लॉट ऑफ चिल्ड्रन। इफ दैट्स योर केस, देन आई विल टेल यू, वैसे मैं सेलेक्टिव स्टडी में विश्वास नहीं करती, लेकिन देन आई विल टेल यू कि आप उसमें कॉन्सेप्ट रजिस्टर को एक बार गो थ्रू कर लो। एकदम तो मत छोड़ो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर को गो थ्रू कर लो। उसके अलावा आप वो जो लास्ट में अपने पास ये वाला क्वेश्चंस आते हैं रिकवरी रेट वाले, ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन वाले, उनको देख लो। और आपको जितना बन पाता है, जितना, वट एवर इज योर लेवल, चाहे वो स्टेटमेंट वाली बात हो या साइमल्टेनियस इक्वेशन, जितना बन पाता है वट एवर इज योर लेवल, उतने लेवल तक का तो रिवाइज कर लो। बिकॉज कोई भी जीरो नहीं होगा, 100% नहीं होगी, 80 नहीं होगी, लेकिन शायद 25, 30, 40% तो आता होगा। उतने हद तक भी रिवाइज कर लो तो इट्स ओके। और उससे ज्यादा के लिए परेशान ना हो, उसको उसी पॉइंट पे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैंने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो फिर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, द चॉइस इज योर्स। जो तुम्हारा कंफर्ट लेवल है वैसे कर लो, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। लेट इन कर लीजिए मैम, बिल्कुल कर लेते हैं साहब। और बिल्कुल टहलते टहलते आइए। कहाँ से लेट इन करूँ, अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। ये प्लीज़ मुझसे ऐसी ऐसी बातें ना किया करो प्लीज़ शालिनी। एक तो तुम अपना आई डोंट नो कौन सा एक्सपीरियंस एकदम से कहीं से शेयर करने लगती हो, ऐसे कुछ भी नहीं करना है अपने को। ये आ चुका तो वो आ जाए, वो आ चुका तो वो आ जाए, इंस्टीट्यूट वो कर देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमको जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसे करके चलना है, उतना बहुत है। आइए, और बाकी अपने पास कुछ अलग नॉलेज हो तो आप अपन वो भी लगा सकते हैं, योर चॉइस।
Moving to the next topic, which is activity based costing. Activity based costing, सुपर्ब टॉपिक इट इज़। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो एफर्ट नहीं मांगता ज़्यादा। मैंने पढ़ाते समय भी कहा था, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत कम है और एग्जाम में अच्छा खासा चांस होता है इसके आने का। तो आप 1 घंटे का टाइम देने वाले हैं। टाइम मैंने यहाँ लिख दिया, सुबह 12 से 1। अगर आप रात में जो मैंने बोला है तब सोते हैं तो कॉन्सेप्ट 10 मिनट में फटाफट हो जाएगा। तो आप क्विकली कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे और आप कम से कम इसके 2 से 3 फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस लिख के कर लें, ताकि आप एग्जाम में ज़रा भी ब्लैंक ना हो जाएं। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो इट्स अ जेम ऑफ अ टॉपिक। तो ये आप कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस आराम से 5-10 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास बजट। अब बजट आपका टाइम मैंने यहाँ लॉट 30 मिनट्स का ब्रेक दिया है, 1:30 से लेके 4 बजे तक 2.5 घंटा दिया है। जब मैं बजट के बारे में बोल रही हूँ, आई विल वापस से मेंशन वन थिंग, दैट इज इफ यू आर अ चाइल्ड हु इज वेरी कंफर्टेबल विद बजट, आई मीन दैट्स ग्रेट। बट इफ यू आर समबडी जिसकी प्रॉब्लम ये है कि यार नहीं हो पाता इतने अच्छे से बजट, मतलब उसमें आप कहो मे बी आपसे स्टार्टिंग का फ्लेक्सिबल बजट हो जाता है लेकिन फंक्शनल इतने अच्छे से नहीं हो पाता, या बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं तो आप कहीं वहाँ अटक जाते हो, तो मैं आपको ये मेंशन करना चाह रही हूँ कि इसको लेके आप बहुत पैनिक ना करें। ऐसा नहीं कह रही मैं कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट, वो वाली बात है। आप उसको लेके ज़्यादा घबराइए नहीं। आप बजट के क्वेश्चंस को उतने हद तक कर लीजिए जितने हद तक आपको बनता है। आपको फ्लेक्सिबल बनता है आप उतना रिवाइज कर लो, फंक्शनल का शुरू का बनता है आप उतना रिवाइज कर लो। जिस पॉइंट पे आप ब्लैंक होने लगते हो या नहीं क्लिक करता, आप उसको छोड़ दीजिए। तो घबराइए नहीं, स्टेप मार्किंग होती है। 5 मार्क्स का आया तो 2-2.5 तो मिल ही जाएंगे, 10 मार्क्स का आया तो 5-1 तो मिल ही जाएंगे। तो अपने को चिंता नहीं करना है कि यार मैं बिल्कुल एंड तक सीख लूँ, बिकॉज वो प्रेशर ना, उससे आप आगे का टाइम भी किल कर देते हो और उससे आप आगे के टॉपिक्स भी खराब कर देते हो, और हमें वो ही नहीं करना है। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। चल, इसका मैं यूट्यूब लेक्चर डाला हुआ है तो कुछ टफ क्वेश्चंस का, तो यू कैन यूज दैट। I'll share the complete playlist with you once. Going to the next topic, which is process. Beautiful topic. Again, I will say it is one of the important topics we have. Process costing बहुत varied नहीं है. It doesn't have lot of variety. It has got primarily 4 areas. If you do them well, lot of chance of coming in examination. तो आप इसको 1.5 घंटे का टाइम देंगे, कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अगले 45 मिनट्स में करेंगे। हर कैटेगरी का एक एक कर लें। बेसिक मतलब जो सिंपल लेजर्स बनाने होते हैं, पीफो कर लें, वेटेड एवरेज कर लें, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कर लें। किसी को लगता है कि वो इंटर प्रोसेस का प्रॉफिट का कैलकुलेशन भूल जाता है, मिस कर जाता है, तो सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पे, तो प्लेलिस्ट में वो भी डाला है। आप वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हो ताकि फटाफट से क्लिक कर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी मत छोड़ना, इसको अच्छे से कर लेना, डू इट वेल, क्योंकि ये बहुत टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें, और आने के अच्छे खासे चांस होते हैं। Yes, please don't ask silly questions, yeah. Please don't ask silly questions like inter-process profit is important for this attempt. What do you mean by that? It is important always. If I am saying it is to be done, that means it is to be done. Don't go specific. मूड है यार देने का, इसमें इस अटेम्प्ट में और उस अटेम्प्ट में क्या फर्क पड़ जाता है? इट्स ऑल अबाउट मूड ऑफ इंस्टीट्यूट, दे कैन गिव एनीथिंग एनी टाइम। चलिए, नेक्स्ट कमिंग टू जॉब कॉस्टिंग। 45 मिनट्स इज द अलॉटेड टाइम फॉर दिस। 5:30 से लेके 6:15 तक आप इसको करें। मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं 2-3 बड़े वो कर लीजिए आप, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है वो कर लीजिए। कमिंग टू नेक्स्ट, जॉब कॉस्टिंग में एक बात बोलना चाहूँगी, स्कोप रख के चलिएगा। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जॉब कॉस्टिंग में काफ़ी कम है, मॉड्यूल में ही है, और जो कुछ आरटीपीज में आए हुए हैं बहुत कम है, लेकिन एग्जाम में ये इसके कोई नया क्वेश्चन क्यूरेट कर दें, दे कैन जस्ट ड्राफ्ट सम न्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस which may not be very comfortable for you, which may not be very comfortable for you. I'm telling you this in advance, which can be for 5 marks or maybe for like 8 or 10 marks. So this shouldn't terrify you in paper. You will do rest of the paper first to ensure 40, then to ensure 60, and then you are going to move to something which is new in the paper. So it may come and a new question can even come, but to be handled and tackled at the end. And it's not going to be such that you can't do it. Of course, at least 70-80% you can do,
but not in the initial hours, only after ensuring that we are passing and we have reached our exemption ka part. Okay, going to service costing. Now, service costing is a topic which is easy and little tricky at the same time. तो अपने को we need to become smart and selective here. While you revise service costing, be mentally clear that in the question we get like around 8-10 points in almost every question. So out of that, those 8 to 10 points, you will have around 6-7 points ऐसे which are very direct. So we need to be very careful with them कि यार ये per month कह रहा है या ये per annum कह रहा है या per driver कह रहा है या whatever. आपको उनको परफेक्ट करना है. तो सिंपल पॉइंट्स भी कभी कभी हम गलत कर देते हैं. सो दे नीड टू बी परफेक्ट, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड देन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो तुम्हारा लिटिल डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है, जैसे हो सकता है डीजल का कैलकुलेशन किसी को लगे या किसी को पावर का कैलकुलेशन लगे या डिनोमिनेटर वाला पार्ट, रिविजन के टाइम उसको संभाल के रिवाइज करके जाना, आराम से देख के कि यार क्या वो ट्रिकी चीज थी जिस दर मैं गलत करता हूँ. लेकिन पेपर वाइज अब मैं कहूँ तो पेपर में वो सिंपल चीजों को भी अगर तुमने कम से कम सही कर दिया तो तुम ये मानो 10 में से 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. कम से कम 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट की बात कर रही हूँ मैं. और अगर तुमने वो भी कैलकुलेशन सही कर दिया तो फिर सोने पे सुहागा है. तो इसलिए चिंता नहीं करना है कि यार सर्विस कॉस्टिंग आ गया. यू शुड बी हैप्पी कि सर्विस कॉस्टिंग आ गया और इसमें इतने सारे पॉइंट्स तो मेरे को बनते हैं 80%. अब वो डिनोमिनेटर थोड़ा मेरा उड़ जाता है तो ठीक है, अब डिनोमिनेटर के भी 2 नंबर काट लेंगे, 3 काट लेंगे तो भी तो 7 नंबर मिल रहा है मुझे, तो मैं न्यूमरेटर परफेक्ट करके आऊँ. तो इसको आपको ये मान के चलना है कि दैट्स पार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ. इट्स नथिंग टू गेट टेरिफाइड अबाउट. ओके, चलिए. तो इधर अपना टाइम कहाँ तक पहुंच गए हैं? बीच में एक छोटा मैंने ब्रेक रखा है 30 मिनट्स का, तो 8:45 हो गया. अब कल रात में आप 8:45 बजे खड़े होंगे और आपके 10 टॉपिक सीव हुए होंगे. तो घबराना नहीं है, एक ही दिन का गैप होता है तो आदमी ऐसे ही चलता है. तो ठीक है, शांति थांबा रख के चलेंगे. अब अपन ने उठाया एम्प्लॉय कॉस्ट विच इज लेबर, 8:45 टू 10:45, 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच. यूट्यूब पे मेरा लेक्चर डला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको शेयर कर दूंगी. इधर शांति से आप वो सुन लेना, पूरा का पूरा वीडियो उसको आप सुन लेना. उसमें सब कुछ कवर्ड है, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं, तो उधर से सब हो जाएगा. तो ये और एलडीआर वाली लिस्ट इसको करके निपटाओ. अब मैं इसको फिर से तुम्हें एग्जाम के लिए बताऊं. एम्प्लॉय कॉस्ट में हैल्सेर ओवन का एक ऑर्डिनरी इजी क्वेश्चन आ सकता है. अब कोई बच्चा अगर एग्जाम में वो गलत करता है तो वो बच्चा बेवकूफ़ है. आपके पास टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है, कोई बच्चा वो गलत करता है, अगेन द चाइल्ड इज सिली. तो आपके पास 80 to 90% क्वेश्चन ऐसा आता है, इवन पीस रेट उसको भी आप गलत नहीं कर सकते. 80 to 90% एम्प्लॉय में से क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपसे बन जाएगा आराम से. 10% चांसेस है कि वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया में आ जाए. तो इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है उस वीडियो को अगर अच्छे से कर लिया तो काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, मेजर काम हो जाएगा तुम्हारा. तो उसको देख लो, बिकॉज उसमें टफ टफ क्वेश्चन ही मेजरली कवर्ड है. ठीक है, ओके. तो 2 घंटे से ज़्यादा इसमें मत लगाना. दैट्स इट. आगे आ जाओ. जॉइंट एंड बाय, ईजी टॉपिक, सिंपल टॉपिक इट इज, इट्स नॉट अ टफ टॉपिक. आपको इसमें मेनली ये समझना है कि यार मेरे को मेथड सारे आते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा. उसमें स्पेशली आपका वो कंट्रीब्यूशन मेथड जो है उसको देख लीजिएगा. उसके अलावा आपका बाकी तो सारे सिंपल मेथड्स हैं. हाँ, वो एनआरवी वाला मेथड उसको एक बार देख लेना. तो ये 2 मेथड्स जनरली इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद आ जाते हैं, 2-2 नंबर में कभी दे देते हैं. और फर्दर प्रोसेस करें या ना करें वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इसका क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में नहीं आता. बट अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स कुछ का भी आ सकता है. तो 5 का आएगा तो मेथड वाला आएगा, और फर्दर प्रोसेस वाला आएगा तो 8 से 10 का आएगा. तो आराम से स्कोर कर सकते हो, टफ नहीं है ये बिल्कुल भी, और कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा भी नहीं. अगला आता है ये सब करने के बाद मार्जिनल. अब भाई मार्जिनल को मैंने लास्ट में क्यों रखा है? मैंने मार्जिनल को लास्ट में इसलिए रखा है, it is a topic filled with lots of concepts, you guys know that. And other than this they have that habit. आजकल अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों से स्पेशली एक ट्रेंड वो ये है इंस्टीट्यूट का कि कभी कभी 2-3 अटेम्प्ट बाद कभी कभी इस पे कोई नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दे देते हैं जो एकदम से बत्ती नहीं जलती. कभी कभी
और जनरली क्वेश्चन जो इसमें से मिलेगा वो तुम्हें किस पैटर्न का मिलेगा, वो 2 लेवल वाला, 2 लेवल की सेल, 2 लेवल का प्रॉफिट, चेंज लगाओ, आंसर निकाल लो। तो ऐसे बहुत कॉमन है, या जो हमने करे हुए क्वेश्चंस हैं जनरली वही आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई नया और ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको लेके ज्यादा घबराना नहीं है। तो क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स में यू हैव टू डू, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.5 घंटे में, उसके अलावा जो हमने स्पेशली प्रैक्टिस सीरीज के टाइम क्वेश्चन किए हैं, जो राउंड 2 वाले क्वेश्चन हैं, वो 10 नंबर कैटेगरी में आ सकते हैं, तो उनको एक इम्पॉर्टेंट देख लो, और 2 लेवल वाले जो है वो इम्पॉर्टेंट देख लो। तो ये बाकी तो मैंने एलडीआर की लिस्टों में दी हुई है। यहाँ तक बात में कोई डाउट है क्या? तो बचा हुआ फिर मैं आगे बताऊं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ भी हो तो पूछे। नो डाउट, सारी बातें हो गई क्लियर, क्या क्या मैं बोलती जा रही हूँ। ठीक है, अब आता है तुम्हारे 14th पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को मैं वापस बोलूंगी टिकट एज योर स्ट्रेंथ बेटा फॉर एग्जाम। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके समझें। एक जाता है रिकंसिलिएशन, मेक इट सुपर स्ट्रॉन्ग, एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए और बहुत सारों का सही भी है, अच्छी पोजीशन है। फिर आता है तुम्हारा नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। अब तुम्हारा नॉन इंटीग्रेटेड का जो सेगमेंट है उसमें जो लेजर बनाने का पार्ट है, मुझे लगता है उसकी जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंसेस, उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस है उनको डालना, इनको तुम्हें एब्सोल्युटली एटलीस्ट 90 to 95% तुम्हारी ग्रिप होना चाहिए कि कौन कौन से लेजर्स में डल रहा है। ये भी तुमने कर लिया तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। गड़बड़ बच्चा कहाँ करता है ना, गड़बड़ करता है बैलेंसिंग में, बिकॉज कभी कभी पहले इस लेजर को करना था, बाद में उसको करना था, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसके लिए चिंता करिए ही नहीं ना, आप उसको इग्नोर मारोगे, ठीक है 20% क्वेश्चन का मानो वेटेज बैलेंसिंग के लिए है, उतना कटेगा, लेकिन मेरे पास 80% तो मिल रहा है। और अगर इस पे जर्नल एंट्री दे दें तो तुमको जर्नल एंट्री बनाते आना चाहिए। तो इसमें तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए यार, मैं रिकंसिलिएशन परफेक्ट कर लूँ, पोस्टिंग परफेक्ट हो, बैलेंसिंग में ये नहीं कह रहे आना नहीं चाहिए, लेकिन जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो उसको लेकर पैनिक ना करें, बिकॉज बिना उसके भी तुम्हें 80% मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में। तो दैट्स द पॉइंट। फिर हम जा रहे हैं, ये टाइम क्या पहुंच गया, ये आपका कल रात में 12 से 2 का शेड्यूल है, तो आप 2 बजे सो गए, अब ये 8 साढ़े 8 का है, तो आप अराउंड 8 बजे तक उठे, आधा घंटे में फ्रेशन अप हुए, 8:30 पे बैठ गए पढ़ने, एक टॉपिक बचा था इसको आपने उठा के कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरी का पार्ट। तो थ्योरी 10:30 से लेके 12, 1.5 घंटा मैंने अलॉट किया है। थ्योरी को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक मत करना, जो मैंने वो पीडीएफ दिया हुआ है तुमको इम्पॉर्टेंट थ्योरी का, उसको कर लो, और मेरी बात को गौर से सुन लो। जब तुम अपना पूरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर कर रहे हो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, जब तुम पूरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारी इनडायरेक्टली बहुत सारी, कम से कम मैं कह सकती हूँ सिलेबस की 70% थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है, बिकॉज वो तुम्हारे हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ ही लिखी हुई है। तो नियरली नथिंग लेस देन 70% के आसपास की तुम्हारी थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी, दैट्स ऑलरेडी डन। अब जो 30% तुम्हारे पास बच रही है थ्योरी, वो इस पीडीएफ में से कवर हो जाती है। 30 की जगह तो मानो 25% इससे कवर हो जाती है। 5% का एक मार्जिन रख के चलो कि कभी कभी दे कैन आस्क यू समथिंग डिफरेंट और समथिंग एल्स, बट दैट्स फाइन, उतना हम थोड़ा सा वो रख के चल सकते हैं मार्जिन। तो आप इस थ्योरी को एंड में जितना कर सको उतना कर लो, हेडिंग्स ध्यान में रह जाए ग्रेट, नहीं रह पाए कंसेप्ट रह जाए ठीक है। एग्जाम में जब आंसर लिखो तो तुम्हें भले ही कम आता है, बात सुनना इंपॉर्टेंट ट्रिक, तुम्हें भले ही थ्योरी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आता, कुछ पता है 50% उसके बारे में, लेकिन एग्जामिनर को तुम्हें ऐसा नहीं एहसास दिलाना कि तुम्हें नहीं आता। सो डू नॉट राइट पुअर आंसर्स, राइट आंसर स्मार्टली इन पॉइंट्स, फ्रेम प्रॉपर सेंटेंसेस, अंडरलाइन वट एवर यू फील कि यार ये तो था ही उसमें द की वर्ड, सो दैट तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। कई बार बच्चों को लगता है यार मुझे ये अच्छे से नहीं आता, तो वो इतना कैजुअली उस आंसर को लिख देते हैं कि एग्जामिनर को लगता है यार तूने तो इनिशिएटिव भी नहीं लिया, ढंग का इनिशिएटिव ही ले लेता तो शायद आई कुड हैव गिवन यू मार्क्स। तो आप उन आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करके पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना, और कुछ भी उसमें रेलिवेंट है तो प्लीज अंडरलाइन इट, द चांसेस इंक्रीज कि वो आपको एक रीजनेबल स्कोर दे दे। तो तुमको रिविजन कैसे करना है, क्या यहाँ तक बात एब्सोल्युटली क्लियर हो गई है एवरीबॉडी, यस और नो? ऐसा लगता है मैं बिल्कुल एक सांस में पूरा बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। इज इट हेल्प
फॉर यू? डू यू फील कि इससे कुछ आसान हो जाएगा? आइडिया हो गया तुमको कैसे क्या करना है? ठीक है, ओके, गुड, ग्रेट। अब बात आती है पेपर की। तो मैं आपको मेंटली जो तैयारी कराना चाह रही हूँ आप वो सुन लीजिए, और फिर मैं आपको पेपर टाइम क्या करना है वो सुन लीजिएगा। तो अपने पास आ रही है बात कुछ इस प्रकार, कॉस्ट का पेपर मैम कैसा होता है? मैम कॉस्ट का पेपर कैसा होता? तो ये कैसा सवाल है? कॉस्ट का पेपर थोड़ी सी मक्कारी वाला होता है। मक्कारी मतलब ऐसे मक्कार बच्चे नहीं होते जो थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं, ऐसा होता है कई बार। मतलब मैम, मतलब ऐसा, एक क्वेश्चन देंगे वो, या तो वो ये करेंगे पहली तरीका परेशान करने का कि वो फर्स्ट जो क्वेश्चन देंगे वो बहुत डरावना सा दे देंगे, उसको देख के ही आदमी की हालत खराब हो जाती है। और वो जो हालत खराब होती है, तो अंदर पेपर में इसके आगे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो आदमी की बत्ती जल ही नहीं रही होती, क्योंकि वो तो पहले ही क्वेश्चन देख के भरा गया है ये क्या कैटेगरी का क्वेश्चन आया है। तो ये पहली मक्कारी होती है। नंबर 2 क्या होती है, जब वो तुम्हें क्वेश्चन देंगे तो वो पूरे पेपर में से आप कह दो कम से कम 30-40% क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, वो वैसे ही होंगे जैसे तुमने क्वेश्चन करे हुए हैं, लेकिन वो ना उसमें एक आध कोई पॉइंट कुछ नया डाल देंगे, कुछ एक आध पॉइंट नया डाल देंगे, ऐसा। तो मैम अब हमें क्या करना है ऐसी दोनों सिचुएशन में? अगर पहली सिचुएशन आती है तो आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा ये वाहियात क्वेश्चन है, तो अब आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। आपको कहना है यार नहीं आता, ठीक है छोड़ो, आगे देखते हैं। तो आपको स्मार्टली ये काम करना है जो मैंने पहले पेपर के टाइम, अकाउंट्स के टाइम बताया था। क्वेश्चन गो थ्रू करो, पढ़ो, क्वेश्चन को देख के लगता है कि यार मुझे ये बनता है, स्कैन करो। स्कैन, पूरा रीड नहीं कह रही, स्कैन। तुम्हें लगता है ये बनता है तो डॉट लगाओ। क्वेश्चन स्कैन करके देखो, तुम्हें लगे ये नहीं बनता तो कुछ मत करो। आगे का अगला क्वेश्चन पढ़ो, स्कैन करो, देखो बनता है, लग रहा है हाँ ये बनता है, डॉट लगाओ। अगला पढ़ा, देखा बनता है, डॉट लगाओ। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स बनते हैं, बस तुम्हें अपना फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया तो तुम सबसे पहले ये क्वेश्चन करोगे। तो तुमको काम ये करना है मेरा बच्चा, छांटना है, छांटना है। पूरा जो पेपर है ना वो ऐसा है कि एक मानो टोकरी है जिसमें बहुत सारा थ्रैश है, कचरा, सारा पीलिंग्स वीलिंग्स कचरा सब, और उसके अंदर कहीं कहीं पे ना डायमंड्स पड़े हुए हैं। बस तुमने उन डायमंड्स को उठा लिया तो काम हो जाएगा, बट तुम्हें खोजना तो पड़ेगा ना। अब तुम वो ही नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाए? बस यही तुम्हारे पेपर की पोजीशन है। तुमको तुम्हारे पेपर में से क्वेश्चंस को फटाफट स्कैन करना है, देखना है मेरे को कौन से आते हैं, और तुमको फर्स्ट 15-20 मिनट्स का टाइम देके डॉट 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 लगा लेना है। क्लियर है अब मामला? क्या मुझे ये तो ऐसे हैं जो बनते ही बनते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन वो उठा लो जिसके तुम्हें सारे पार्ट्स बनते हैं, या सारे नहीं बनते तो मेजर पार्ट्स बनते हैं, उसको पहले कर लो, फिर उससे कम जो बनता है उसको कर लो, फिर नेक्स्ट कर लो, फिर नेक्स्ट कर लो। सो दिस हैज टू बी द वे। तो मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई। पेपर ऐसा नहीं आता, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, देयर विल बी हर्डल्स। वी आर राइटिंग सीए इंटर का पेपर, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट स्मूथ, बट we need to have a strategy to handle it, and it is absolutely controllable. You can absolutely do it. आराम से you people have the position कि तुम 85-90 मार्क्स तक भी ला सकते हो। और अगर बहुत चिंतित हो या लगे नहीं यार मैम हमने उतने अच्छे से रिवीजन करा ही नहीं है, तो भी एग्जामिशन तक तो कम से कम तुम लोग लेके आ सकते हो, ये मैं तुम्हें दावे से कह रही हूँ। बट इट्स ऑल हेयर, इट्स ऑल हेयर। बिल्कुल, आप स्पेस छोड़ सकते हो। आपको ये लगता है कि किसी क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और 4 में से आपको 3 आते हैं, 1 नहीं आता, तो आप 3 करो, जगह छोड़ो चौथे के लिए और आप आगे बढ़ जाओ। वापस आओ, जब टाइम मिले तो उसको कर लेना, और बाय चांस टाइम ना मिल पाए, तो आप अपने पेन से बाद में उस जगह को काट देना, खत्म हो गई बात। तो ओवर, ठीक है? और अब आपको वो बता रही हूँ कि किसी क्वेश्चन में मानो कोई पॉइंट उन्होंने उलझा दिया, अब पूरा सही जा रहा था, फिर कोई पॉइंट उलझा दिया, तो रिमाइंड करो अपने आप को कि बेटा स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, तो मुझे जितना बनता है उतना तो मैं करूँ, उतना तो मैं करूँ। और मुझे स्टेप मार्किंग वाला पोर्शन है, अब मैं उसको पढ़ के देख के ट्राई कर लेता हूँ, सही हो जाएगा ठीक है, और नहीं होगा तो बाकी तो क्वेश्चन कर दिया ना, तो उतने के मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसमें भी नहीं टेंशन लेना। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसमें फाइनल आंसर मत निकाला करो, फाइनल आंसर मत निकाला करो। व्हाट डज दिस मीन? जैसे मैंने आज भी टैक्स के पेपर के लिए तुमसे कहा था,
फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मिलता है, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में तुमको सारे पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन 2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं। अब 2 नहीं आ रहे हैं ना, अब वो 2 पॉइंट या तो मानो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ रहे थे, या आप मानो 4+1 वाली कैटेगरी के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, या लास्ट में तुम्हें कंफ्यूजन है ऊपर या नीचे, तुमने किसी एक जगह डाल दिया। अब तुम क्या करो, अपना टाइम टोटलिंग में वेस्ट मत करो। तुम ऊपर निकालो मटेरियल कंज्यूम, तुम निकालो प्राइम कॉस्ट तक, उसके बाद तुम निकालो अपना फैक्ट्री कॉस्ट तक, उसके आगे का टोटलिंग मत करो, मत करो। अब किसी को लगेगा मैम शायद सही हो जाए तो शायद गलत हो जाए तो, और गलत होगा तो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा। तो उस एनर्जी को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो, उस जगह पे जो तुम्हें एब्सोल्युटली आती है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। बी प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल इन पेपर, दैट इज व्हाट इज नीडेड। पेपर पूरा हो जाए फिर बैठ के लगाओ टोटल, लेकिन जब जब वहां पे इतू सा टाइम है उसके अंदर हम ये वाहियात काम करें तो कैसे चल पाएगा। आप समझ गए मेरी बात? तो आप इस चीज को लेके भी बड़ा स्ट्रेटेजिक होना है। और जिन क्वेश्चन को आपको लगता है यार ये तो मेरे को बनता है, ईओ क्यू का क्वेश्चन आ गया या आपको बेसिक हेल्थ से रोवन का क्वेश्चन आगा, फटाफट करो, उसमें तो सिली मिस्टेक करने नहीं होता, सिर्फ स्पीड तेज रखनी है और आंसर को फाइनल आंसर को बॉक्स में डालना है। ठीक है, ओके। तो भाई अगर मैं समअप करूं, सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन आपको प्लीज बहुत संभाल के पढ़ना है, रीड इट केयरफुली। If you don't read carefully, then you are going to do a lot of silly mistakes, and that will be the worst thing you can do with yourself and with me. I've really taught you so much. You know that. I mean, I have covered everything. पूरी जान लगा दी है तुम्हें पढ़ाने में, तुम्हें ये बात पता है, और क्या कुछ नहीं कराया है तुम्हें। और अगर तुम सिर्फ इतना कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ो और सिली मिस्टेक करके आ जाओ, तो आई डोंट नो कि इससे बुरा तुम क्या ही कर सकते हो मेरे साथ। तो इसलिए तुम्हें वास्ता है वो पूरी मेहनत का जो तुमने खुद के लिए करी है और जो तुम्हारे लिए करी गई है, प्लीज। और टेंशन नहीं लेना, शांति से करना, बस कर सकते हो तुम, मुझे है भरोसा। फॉर्मूला लिखना है अपने को, ठीक है, स्पीड का ध्यान रखना है, कोशिश तो होनी है कि अपन 100% पेपर करके आए, लेकिन छूटता भी है अगर, तो अपने को एटलीस्ट 85+ का करके आना है। एग्जामेशन के लिए 85+ तो करके कम से कम आना है। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। करना वैसे 100 का ही होता है। शुरू के 2 घंटे ऑप्शनल है, ये चीज़ को मैं डिस्कस कर लूँगी अभी। डिस्क्रिप्टिव कर लो और 70 नंबर का क्लोज कर दो 2 घंटे में जो भी। और फिर जो लास्ट का 1 घंटा बचता है उसमें तुम केस स्टडी और एमसीक्यू कर लो। तुमको ऐसा लगता है कि तुम 1 घंटा शुरू का डिस्क्रिप्टिव करना चाह रहे हो, वो कर लो। 1 घंटे के बाद तुम एमसीक्यू उठा रहे हो तो वो उठा लो। बट एमसीक्यू और केस स्टडी को 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। फिर 45 मिनट्स का टारगेट रखना तो वो 1 घंटा खींच ही जाएगा। तो 45 मिनट शुड बी योर मैक्सिमम टारगेट। वर्किंग नोट, डू नॉट मिस ऑन दिस, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स उन्हीं के मिलते हैं। फाइनल आंसर्स प्लीज पुट देम इन बॉक्स, डू नॉट मिस दैट। और तुमको अगर लगता है सर्विस कॉस्टिंग में एक आध कैलकुलेशन गलत है, डोंट टोटल इट। कॉस्ट शीट में एक आध कैलकुलेशन गलत है, डोंट टोटल इट। ओवरहेड्स में एक आध कैलकुलेशन गलत है, डोंट टोटल इट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक आध कैलकुलेशन गलत है, डोंट टोटल इट। जॉब कॉस्टिंग में एक आध कैलकुलेशन गलत है, सेम इज एप्लीकेबल। तो देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स जहाँ पे टोटलिंग की जरूरत पड़ती है, एक भी पॉइंट गलत होता है तो टोटल गलत हो गई। तो प्लीज डोंट डू दैट, सेव टाइम एंड इन्वेस्ट इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। I hope everything has gone in your brain. Yes or no? Do you have any doubt? Do you have any doubt? Or is it all clear? I've taken too much of your time. You were supposed to begin material, but that's fine. 15 minutes you can adjust somewhere. No issues about it. Clarity से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड के अपन बस randomly start कर लें। ठीक है? Okay. So lot of blessings, wishes. Begin your task. क्या total नहीं किया तो marks कटते हैं? नहीं कटते। So begin your task with full energy, with enthusiasm, with excitement, with smile, with energy. You can do it and you will do it. Okay? Okay. 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 Chalu. If anybody has any concern or so, you can WhatsApp me. I'll be available. Bye. Take care. God bless you all. I share this file in the group. Don't worry. I'll share it in the group. Okay. Bye. Take care.